Hello everyone, welcome to all. In the previous videos, already we have completed our notes and the in-text questions. So in this video, we will do NCERT exercise question answers of chapter number 5. So the first question is, make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cells. Means we have to differentiate plant cells and animal cells. So the the animal cell, they are irregular in shape, means they can change their shape. They may be round, oval or spherical. On the other hand, plant cells, they have regular shape. They may be cubed or rectangular in shape. Animal cells, they are very small in size, whereas plant cells, they are larger in size. In animal cell, there is no cell wall. Cell wall is the extra layer that is present only in the plant cell. In the animal cell, plastids are absent. It means animal cell में कोई chloroplast present नहीं होता. But in plant cell, the chloroplasts or plastids are present. In animal cell, vacuoles are more in number, but they are very small in size. And on the other hand, in plant cell, the vacuole, only single large vacuole is present in the plant cell. In animal cell, centrosome and centrioles are present, which help in the cell division of animal cell, whereas in plant cell, centrosomes and centrioles, they are absent. So we can see their diagrams to differentiate plant cell and animal cell. The second question is, how is a prokaryotic cell different from a eukaryotic cell? एक prokaryotic cell eukaryotic cell से कैसे different है? The first पॉइंट फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल इज़ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, दैट इज़ 1 to 10 माइक्रोमीटर ओनली. बट अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल इट इज़ लार्ज इन साइज़ फ्रॉम 5 to 100 माइक्रोमीटर. जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स दे आर प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं होता. उनमें क्रोमेटिन मटेरियल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. बट ऑन द अदर हैंड, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन इज़ वेल डिफाइंड. द क्रोमेटिक मटेरियल हैज़ द वेल developed nuclear membrane. In the prokaryotic cell, nuclear membrane, nuclear pores and nucleolus are absent. But on the other hand, in eukaryotic cell, nuclear membrane, nuclear pore and nucleolus are present. As we can see the differences in the diagram of nucleoid and nucleus. So let's have a look at the diagram. The next fifth difference is, in prokaryotic cell, the membrane bound organelles such as mitochondria, plastids, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and lysosomes, they are absent. Only the ribosomes, which are non-membrane organelle, only ribosomes are present in prokaryotic cell. On the other hand, in eukaryotic cell, membrane bound organelles are present like mitochondria, plastids, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, etc. In prokaryotic cell, the cell division takes place by asexual reproduction, that is the binary fission. But in eukaryotic cell, cell division can take place by mitosis and meiosis. It means reproduction can be asexual or sexual in eukaryotic cell. In prokaryotic cell, only single chromosome is present, but in eukaryotic cell, more than one chromosomes are present. Prokaryotic cell examples are bacteria and archaea, and eukaryotic cell examples are plants and animals. The third question is, what would happen if the plasma membrane ruptures or breaks down? Means अगर किस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए, कोई ब्रेक डाउन हो जाए, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सेल के ऊपर? हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, चाहे वो यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर है. ये सेमी परमिएबल इन नेचर होती है. मींस ये सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही अंदर और बाहर आने जाने देती है, और ये सेल के सारे कंटेंट को इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिफ्रेंशिएट करती है. अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रप्चर हो जाए, इट मीन्स जो सेल के सारे कॉन्टेंट होंगे दे विल कम आउटसाइड इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एंड
the cell will lost its composition, its organization, and cell is not able to perform any function, and at the last the cell will die. The fourth question is, what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? कि अगर सेल में अगर कोई गोल्जी apparatus ना हो तो सेल की लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, सेल की लाइफ को क्या होएगा? हमें पता है कि जो गोल्जी apparatus है दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, गोल्जी apparatus का मेन फंक्शन है कि सेल में जो भी मटेरियल बन रहा है लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, उन मटेरियल को मॉडिफाई करना, उनकी पैकिंग करना और उनको ट्रांसपोर्ट करना. कि अगर सेल में कोई भी गोल्जी apparatus नहीं होएगी तो इन मटेरियल्स की कोई मॉडिफिकेशन नहीं होएगी, कोई पैकिंग नहीं होएगी और कोई पैकिंग नहीं होएगी. ठीक है, तो ये दोनों मटेरियल्स ही इंपॉर्टेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए. तो इट विल डायरेक्टली कि गोल्जी apparatus की प्रेजेंस और एब्सेंस ही डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन को. सेकेंड है कि गोल्जी apparatus का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है सेल के बाहर भी और सेल के सारे पार्ट्स तक भी. अगर गोल्जी apparatus नहीं होएगी तो इन मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होएगी. थर्ड, सेल में हमें पता है कि सिंपल शुगर बनती है लाइक ग्लूकोज माल्टोज, सिंपल शुगर्स बनती है. ये सिंपल शुगर्स गोल्जी apparatus के पास जाती हैं मॉडिफिकेशन के लिए. सिंपल शुगर आपस में ज्वाइन होकर कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं जैसे कि ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा. इफ़ देयर विल बी नो गोल्जी apparatus देन देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर. द फोर्थ पॉइंट इज़ कि हमें पता है कि लाइसोसोम्स गोल्जी apparatus से ही बने होते हैं. अगर गोल्जी apparatus नहीं होंगे तो देन हाउ लाइसोसोम्स विल फॉर्म. इफ़ लाइसोसोम विल नॉट बी देयर देन फॉरेन मटेरियल्स और ओल्ड ऑर्गेनेल्स डाइजेस्ट नहीं होंगी सेल में एंड सेल विल नॉट survive for long time without the lysosome formation. So lysosome formation directly depends on the presence or absence of the Golgi bodies. And the fifth question is, which organelle is known as powerhouse of the cell and why? कि सेल की किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस बोलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है सेलुलर रेस्पिरेशन की, फूड के ब्रेकडाउन के लिए. सो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी रिलीज करता है एटीपी फॉर्म में, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. यही एनर्जी यूज़ होती है सेल में वेरियस केमिकल रिएक्शंस में. सो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड. कि जो सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स सेल में कहाँ पर बनते हैं, कौन से और सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू बनते हैं. जो सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है जो कि दो तरह की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड. अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है. अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फैगोसाइटोसिस. अभी एंडोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस होती क्या है. इट मीन्स अमीबा अपना सॉलिड फूड इनगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सो हैव अ लुक एट द वीडियो कि हाउ अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड. व्हेन अमीबा सेंसेस एनी फूड, फूड्स को सेंस करने के बाद ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करता है जिससे बोलते हैं सीडोपोडिया, और ये फूड को सर्कल करता है, उस सर्कल को बोलते हैं फूड वैक्यूल. तो वो फूड वैक्यूल फूड को अमीबा की बॉडी के अंदर लेकर जाता है. उस फूड वैक्यूल में जो फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस है, वो ब्रोकन डाउन होते हैं तो सिंपल सब्सटेंसेस में. फिर वो सिंपल सब्सटेंसेस सारे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ होते हैं ताकि अमीबा उन सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ कर सके. एंड एट द लास्ट जो भी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर रिमूव किया जाता है. सो दिस इज़ द न्यूट्रिशन इन अमीबा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या है. ऑस्मोसिस ये सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है. कहाँ से कहाँ मूवमेंट होएगी, फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन. मींस जहाँ पर पानी की अमाउंट ज़्यादा होएगी वहाँ से पानी मूव करेगा कहाँ पर, जहाँ पर पानी की अमाउंट कम होएगी. ये जो मूवमेंट है इट विल
occurs only through the semi permeable membrane. अगर semi permeable membrane नहीं present वहाँ पर, तो it means वो पानी की मूवमेंट जस्ट थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है. अगर वहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हाई टू लो वाटर कंसंट्रेशन, इट मीन्स दैट इज ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स आर नेसेसरी. फर्स्ट इज मूवमेंट ऑफ वाटर, second is movement from high water concentration to low water concentration, and third is movement always through a semi permeable membrane.